Welcome back again. I'm Brajesh Mohan, and in this particular video, we would be discussing about NABARD Grade A Phase 2 exam. The exam is going to be held on 20th October, and I have been receiving a lot of message from all of you guys how to plan these remaining days. जो remaining 20 days बचे उसको कैसे plan किया जाए? What should be the strategy? What has been the exam trend in past 3 years? And based on that, what are the important chapters that I need to focus upon in the remaining days? So to address all these questions, what are the sources of question and everything, I am posting this particular video for all of you. So watch this video till end. And also, if you haven't subscribed this YouTube channel, then do subscribe. So let's get started. Before moving ahead, if you want to join any descriptive writing program where your copies are checked, where your answers are evaluated, or feedback or detailed feedback are provided, so for that purpose, you can join my descriptive writing program. It also includes descriptive writing compendium, schemes compendium, PIB magazine from January onwards. And I would show you how the PIB magazine is very important for NABARD ग्रेड एग्जाम, क्योंकि जितने भी स्कीम्स पूछे जाते हैं सबका सोर्स आपको PIB रहता है NABARD में. तो इसलिए ये एग्जाम के लिए आपको जो है PIB काफी इंपॉर्टेंट है. सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. लिंक हैज बीन गिवन below in the description, or you can check courses.edugrade.in/learn. यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो. Before moving ahead, we would be analyzing the past 3-year cutoffs. But I can tell you, these were the cutoffs when the vacancies were around 150. Okay, in last 3 years. But this year, the total number of vacancies is 102, and the vacancy for generalist post is 50. For computer IT, it is 17. Total vacancy is 17. So this year, the vacancies are significantly low. So उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बट फिर भी वी वुड बी एनालाइजिंग द कट ऑफ्स ऑफ लास्ट 3 years, हाउ हैज बीन द ट्रेंड. Here you can see this is for 2021, 2022 and 2023. In 2021, the exam was held on 16th November. In 2022, the exam was held on 20th October. Then in 19th November, and once again in 2024, it is going to be held on 20th October. यहाँ पर आप देख सकते हो कि 118.42 था कट ऑफ, एंड द पर्पस ऑफ दिस 0.42 is that in 2021, you know, there would be 50 in paper 2, there would be 50 marks worth of objective and 50 marks worth of descriptive. In 50 marks worth of objective, there would be 2 marker questions, 22 marker questions and 10 1 marker questions. दो सेक्शंस बने होंगे. आपको ऑब्जेक्टिव में सेक्शन बना होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए के अंतर्गत आपको जो है 2 मार्कर क्वेश्चन होंगे, एंड सेक्शन बी में आपको 1 मार्कर क्वेश्चंस होंगे. So all the 2 marker questions are mostly based on passages. They give you some paragraphs, some passages, and based on which they ask you 3 to 4 questions on that particular passage. Okay, and apart from that, there would be one-liner questions. Although they are not one-liner, they are multiple statement-based questions, but those are worth 1 marks, and they come under the section B. So under section B, there would be 10 questions. So this is 40 marks and this is 10 marks. But what they did in 2021, उन्होंने क्या कर दिया, सभी क्वेश्चंस का वेटेज उन्होंने सेम कर दिया. सो देयर वर टोटल 50 मार्क्स, तो 50 डिवाइड बाय 30 क्वेश्चंस, सो इट इज अराउंड 1.66. तो उन्होंने सभी क्वेश्चंस का मार्क्स जो है वो सिमिलर कर दिया. सो व्हाट वाज द इम्पैक्ट क्या था कि काफी सारे लोग जिनका कि 1 मार्कर, एंड दैट ईयर 1 मार्कर वाज रियली इजी. उन्होंने पूछा था कि जो इवन मंत्रालय मिनिस्टर वगैरह के नाम तक पूछ लिए थे. सो दैट ईयर द 1 मार्कर वर क्वाइट इजी. सो काफी लोगों के 9 out of 10 क्वेश्चंस वर करेक्ट इन 1 मार्कर, बट 2 मार्कर्स में काफी गलती हुई थी, इंक्लूडिंग माइन. ओके, तो इसका एडवांटेज क्या हुआ कि 1 मार्कर के भी आपको जो 1 मार्कर थे उसमें 9 क्वेश्चन सही हो गए, तो ऑटोमेटिक सी बात आपको 1 मार्क्स के बदले 1.66 मार्क्स मिल गया. ओके, तो उसके कारण से जो है काफी लोगों के ऑब्जेक्टिव में अच्छे मार्क्स आए हुए थे. बट it was reported and lots of कह सकते हो complaints were raised, and after that, although they did not change anything in that year, but after
2021, from beginning from 2022, they came back to this 2 marks and 1 marks, and they had specifically mentioned that this question is worth 2 marks and this question is worth 1 marks. उन्होंने एग्जाम में इस चीज को मेंशन करना स्टार्ट कर दिया था. ओके, तो 2022 में कट ऑफ क्या रहा? कट ऑफ ऑल ऑफ अ सडन इट इंक्रीज टू 130.50. And this was the first year of exam, first year of changed pattern exam, and there were one particular 15 marker question which was based on cross breeding. Although at that time not many people were familiar about that thing, and there were mandatory questions concept also. तो इसीलिए कट ऑफ जो है 118 पॉइंट गया था. But the next year people got familiar with the syllabus and everything, so the cut off skyrocketed to 130.50, and people were also comparatively easier. Then comes the 2023. In that year, the cutoff goes down a bit, 128.50 for general category. Now, what was the notion? Because the objective section in 2023 was comparatively difficult than the 2022. ऑब्जेक्टिव सेक्शन क्या था? कंपैरेटिवली डिफिकल्ट था 2022 से, इसीलिए आपको ये कट ऑफ पर जो मार्जिनल इंपैक्ट पड़ा, बट यू कैन सी द इंपैक्ट वाज मार्जिनल. ओके, इन 2022 मेनी पीपल वर, आई नो अराउंड 40 प्लस पीपल वर स्कोरिंग 40 प्लस स्कोर, 45, 42, 43 scores, but that was not the case in 2023. Not many people were scoring 40 plus scores, 40 plus marks in objective section, because questions were a bit tedious in nature. Okay, इसका impact ये हुआ. One more thing I want to highlight that in the NABARD grade A you have sectional cutoff in phase 2 exam also. Okay, so for paper 1 you can see the sectional cutoff was for generalist post sectional cutoff for reserve category 51.25, for EWS and unreserved it's 53.25. Okay, similarly for paper 2 objective and descriptive paper which is worth 50 marks, there is sectional cutoff of 19.50 for reserve category, 22.50 for unreserved category. Okay, including the EWS. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेक्शनल कटऑफ भी होता है. तो इवन आप देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव पेपर में द कटऑफ वाज 28 marks and 31 marks. So take care of this. You will have to take care of these things also. So it's not like if you are scoring less than 31 marks being general category student in the paper 2 of descriptive section, although you have been scoring very well, means you have scored 42 marks, you have scored 65 marks over here, but here you have only 30 marks. You won't qualify for, although you may have scored the overall cutoff, but you may not be able to clear the phase 2 exam, but because you have been disqualified in the sectional cutoff, right? तो ये चीज आपको जो है ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट भी लागू होता है. तो ये चीज आपको you will have to take care of this thing also. So this was the cutoff analysis of last 3 years. So definitely आपको यहाँ पर टारगेट क्या करना पड़ेगा? You will have to target 140, 145 this year, depending upon the vacancy. But that also depends on the difficulty level. Okay, so it's not like that कि difficulty कुछ भी और कट ऑफ एकदम से स्काईरॉकेट हो जाएगा. No, अगर पेपर डिफिकल्ट होता है तो कट ऑफ जो है आपको उस पर इसका इम्पैक्ट होता है. बट अगेन आई एम सेइंग दैट कि लास्ट ईयर भी पेपर थोड़ा सा आपको टीडियस था, फिर भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर काफी कम होती है और सभी लोग अच्छा खासा प्रिपेयर करते हैं. इस साल तो आपको वैकेंसी और भी काफी लो है, तो उस हिसाब से आपको और भी ज्यादा इनपुट डालने की जरूरत है और भी एफर्ट डालने की जरूरत है. So let's get started with the paper 2. And guys, I want to tell you that ये जो 18 questions है, means 6 questions in 2021, 6 questions in 2022, and 6 questions in 2023. Please make sure that you have clear-cut understanding about all these 18 questions, because NABARD has tendency of repeating the questions, at least repeating one questions. I will show you how they have repeated the questions over the years. Okay, so this is the question of 2021. For the first time, they have introduced descriptive. So review of MSP program given by the government. Okay, run by the government, not given, run by the government. Impact of WTO decision on the Indian economy. Cross-breeding. One more thing I want to highlight that there would be 3 questions in 15 marks and there would be 3 questions in 10 marks. This is for the descriptive paper of paper 2, which is worth 50 marks, right? Here you have this condition that
Unlike RBI Grade B, where you have option to attempt any two question out of three questions, but in NABARD you have a mandatory questions, which makes the paper difficult. ओके क्योंकि ये मैंडेटरी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हो और एट द सेम टाइम इसमें आपको ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और ये क्वेश्चन जनरली थोड़े आपको डिफिकल्ट होते हैं तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैंडेटरी क्वेश्चन का कंसेप्ट है इन बोथ द सेक्शंस ऑफ 15 मार्क्स एंड 10 मार्कर्स ओके सो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंडेटरी होगा तो टेक केयर ऑफ दिस थिंग ऑल्सो कि यहाँ पर मैंडेटरी क्वेश्चन का कंसेप्ट अवेलेबल है सो द क्रॉस ब्रीडिंग ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एंड देन in the 10 marker drip irrigation how it had changed the agriculture advantage disadvantage non institutional credit in जो है agriculture similar kind of question जो आपको जो rural finance है okay this particular question is based on rural finance it comes under rural development last chapter of your ARD okay rural finance जो आपका ये chapter है based on this particular question they have asked here in 2023 they have asked a similar question credit penetration check this question credit penetration in rural area and if farmers are still in the clutch of hands of money lenders okay a similar kind of questions were asked in the 2021 also तो ये रूरल फाइनेंस पर आपको क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चंस आपको जनरली पूछे आते हैं सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग आल्सो then comes the social forestry its type and component it was a mandatory question in 2021 okay then comes the 2022 in 2022 once again they asked social forestry but this time it was not a mandatory question you can see here they asked the discuss the benefits of social forestry okay so they have been repeating the question that's what I'm telling you so in 2022 50 marker question was PDS okay PDS is very important MSP is very important food security is very important social infrastructure is necessary for inclusive growth so basically they merged the social infrastructure which basically not directly in our syllabus but the social infrastructure is kind of this comes under the social issues topic okay social justice topic okay and they have merged with this inclusive growth is which is one of the important topics which keeps under the news which keeps coming in the news क्योंकि right now government is focusing upon the inclusive growth ओके अभी इलेक्शन के टाइम पर भी आपने सुना होगा इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में काफी चर्चा थी इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है कि यहाँ पर सभी लोगों का ग्रोथ करना सबका इंक्लूसिव इट्स नॉट दैट ग्रोथ शुड बी फॉर हैंडफुल ऑफ पीपल या कुछ लोगों एलिट लोगों के लिए या कुछ लोगों के लिए बस जो है ग्रोथ नहीं होना चाहिए इट शुड बी इंक्लूसिव इन नेचर खास करके जो डिसएडवांटेज सेक्शन है जो अनडॉन ट्रीडेड सेक्शंस हैं उनके लिए जो है ये ग्रोथ की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए उनके तक ग्रोथ पहुंचना चाहिए दैट द इंक्लूसिव ग्रोथ ओके सो इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा गया था दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत्स्य संपदा योजना ओके स्कीम वाज आस्क्ड एंड इस पर आपको जिसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आपको लिखने थे तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था और ये आप देख सकते हो कि 2015 में जो है इन 2015 इट वाज अ मैंडेटरी क्वेश्चन ओके फिशरीज से उन्होंने क्वेश्चन पूछा और रिपीटेडली पूछा है और ये फिशरीज पर जो है मत्स्य संपदा पर इन्होंने जो है पूछा क्वेश्चन एंड इट वाज अ 15 marks question it was a mandatory question globalization has been very important you can see the globalization topic has been asked as a mandatory question in 2022 let me show over here yes in the once again I had seen the globalization the globalization topic was also asked somewhere else okay तो globalization जो है वो नबार्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है you will have to प्रिपेयर द नोट्स और उसके रिगार्ड्स आपको फर्दर मटेरियल जो है रेडी करना है ग्लोबलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो सरप्राइजिंग था वो ये था कि in 2021 they had asked related to RBI a question related to RBI but in 2022 they did not ask anything related to reports and RBI even not even in objective section but all of a sudden they asked a 15 marker question based on RBI initiative or you can say that RBI Financial Inclusion Index which is very important RBI releases two index digital payment index and financial inclusion kind of comes under the NABARD although not directly but
NABARD also works for the financial inclusion. Okay, so basically they did give the in details of the increase in the financial inclusion. और वहां पर उन्होंने पूछा कि what were the reasons behind gradual increase in the financial inclusion index. It was a 15 marker question in 2023. Demographic dividend सबको पता है. It was a hot topic last year because India became world's most populous country. So demographic dividend, demographic disaster, these were quite in the news. So उसी पर बेस्ड उन्होंने पूछा था. एक टॉपिक जो होता है वो हॉट टॉपिक जरूर होता है, उस पर क्वेश्चन जरूर पूछते हैं. जैसे एमएसपी जो 2021 में काफी था, उस टाइम पर जो गवर्नमेंट ने 3 फार्म लॉ लाए थे और वो जो बेसिकली एमएसपी पर प्रोटेस्ट हो रहा था. तो एमएसपी वाज वन ऑफ द हॉट टॉपिक एट दैट टाइम. सो दे बेसिकली आस्क्ड ऑन दैट थिंग. ओके, तो उस पर उन्होंने जो है पूछा था. इंक्लूसिव ग्रोथ 2022 में काफी इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में चर्चा हो रही थी, तो इंक्लूसिव ग्रोथ पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा. इवन ग्लोबलाइजेशन पर भी जो क्वेश्चन पूछा था कोरोना के बाद. ग्लोबलाइजेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड जो है डी ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही थी कि आफ्टर कोविड डी ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट इज ग्रोइंग, तो उस पर काफी बात हो रही थी, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था. राइट, तो this is how they basically ask a question related to current affairs. whichever topic is in hot topic न्यूज में रहता है, बार बार आपको उससे एक क्वेश्चन या तो वो 15 मार्कर में 10 मार्कर में वो जनरली आपसे पूछते हैं. ओके, so prepare further material related to all these 18 questions. Okay, आपको इससे रिलेटेड सब कुछ पता होना चाहिए. There could be a question repeat, they can repeat a question, and if they do, बिलीव मी, ये आपके लिए काफी पॉजिटिव होगा क्योंकि आपको आसानी से 10 या 15 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे आपको बिना कुछ किए. ओके, if I talk about the paper 1 section, okay, let's discuss about the paper 1 section, English descriptive. In English descriptive they ask you 3 type of questions, which is essay, letter writing, and précis writing. So last year they increased the word limit. In 2021 and 2022, the word limit for essay was 350 words. But last year they gave it in a range, and it was a 500 to 520 words. Okay, and the topic were agriculture and technology, complement each other for better prospect, describe and give brief about 5 latest technology in agriculture. तो टाइम्स ऑफ इंडिया पर जो है इस तरह का आर्टिकल आया हुआ था और उसी से उन्होंने वो टॉपिक को पिक किया था. Role of cooperative in sustainable rural development. Cooperative was a hot topic last year. Okay, government launched computerization of tax and खास करके रूरल कोऑपरेटिव्स के लिए काफी ज्यादा वर्क हो रहा है. आपको इवन द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव. तो रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट हैज बीन आस्क्ड. It was an easy topic. Most people had written. If I had given the exam, then I would have written this topic. वर्क लाइफ बैलेंस पर एक टॉपिक पूछा गया था. जनरली ये एक तरह से जो ह्यूमन सेंट्रिक टॉपिक होता है वो आपको हर बार पूछा जाता है. ओके, रिलेटेड टू सोशल मीडिया, और ये एक बर्निंग टॉपिक है. सोशल मीडिया के बारे में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये टॉपिक था. लेटर राइटिंग क्या है? राइट रिलेटेड टू कस्टमर केयर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फॉर चेंजिंग एड्रेस. सिमिलरली 2022 में उन्होंने एक कंप्लेन लेटर पूछा था. राइट ए कंप्लेन लेटर टू ई कॉमर्स. Similarly, write a letter to a residential society to open a small library for children in the society. Write a letter to congratulate your manager on his farewell and appreciate the role played by him in your career. Last year also similar topic was there, but it was promotion at the place of farewell. Similar question was in descriptive mock for I had taken. अब देखो, why I am showing all these topics, स्पेशली आप अगर ध्यान दो तो ये जो लेटर्स हैं, ये जो मैं आपको 12 के लेवल 12 लेटर्स आपको मैं बता रहा हूं, इसको आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना. ओके, यू शुड प्रैक्टिस दीज 12 लेटर्स फॉर श्योर. व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि इसी से रिलेटेड आप देख लो यहां पर मैंने लिखा हुआ है. लास्ट ईयर इससे रिलेटेड था. 2022 में क्या पूछा था मैंने, उससे रिलेटेड आपको बता रखा है. डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर रेसिडेंशियल सोसाइटी के जो आपको जो ये बेसिकली जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं हर सोसाइटी में, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो उसको बेसिकली यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया था. और द ट्रेंड्स हैज बीन सिमिलर, बस द टॉपिक का जो नेचर चेंज किया गया है, बट द टॉपिक अगर देखोगे तो ओवरऑल वो सेम है. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह की चीजों को आपको ध्यान रखना है. इसको आपको अगर अच्छे से कर लोगे तो आपको दोबारा अगर इस तरह के टॉपिक्स आते हैं तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा. आपका क्या होगा, देखो
व्हाट आई यूज टू डू, मैं पहले से, जैसे मान लो ऊपर का जो सेक्शन होता है, अगर आप लेटर देखोगे तो लेटर में क्या होता है, टू फ्रॉम जो भी रहता है वो सब्जेक्ट इवन डेट वगैरह, आप यहाँ तक ऊपर का जो सेक्शंस होता है ये तो आपको पूरा का पूरा क्लियर कट याद होना चाहिए। ओके, इवन सब्जेक्ट देने के बाद जब आप सैल्यूटेशंस देते हो, सब्जेक्ट देने के बाद जब सैल्यूटेशंस देते हो, डियर सर एंड डियर मैम, जो भी आपका है, ये देने के बाद इवन द यू राइट 3 पैराग्राफ्स। ओके, अगर या 2 पैराग्राफ्स अगर लिखते हो तो फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, उसके कंटेंट जो है ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। अगर टॉपिक जो है, मान लो अगर रेजिडेंशियल सोसाइटी को फिर से लिखने के लिए बोला गया है, अगर मैं यही टॉपिक पिक करता हूं तो बस क्या था, पिछली बार डिजास्टर मैनेजमेंट था, इस बार लाइब्रेरी ओपन करने के लिए बोला गया है, तो बात तो बराबर है ना, सब कुछ तो अरे यार, बात तो बराबर है, तो ऊपर का जो 2-3 लाइन होगा वो तो सेम रहेगा। नीचे का जो आपको जो एंड आप करते हो, जहां पर कि जहां रिक्वेस्ट करते हो कि इफ यू डू ऑब्लाइज एंड एवरीथिंग, वो चीज तो आपको सेम रहेगा, बस बीच में कुछ कंटेंट आपको डालने पड़ेंगे। तो अगर मैं पहले ही ग्रामेटिकली करेक्ट ऊपर का कुछ 3 लाइन, नीचे का 2 लाइन अगर लिख के जाता हूं ग्रामेटिकल, उसको मैं याद करके रखता हूं, तो आप यहां पर मानते हो नहीं कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो कितने होंगे, हार्डली 2 या 3 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करूंगा। बट अगर मैं कुछ फ्रेज पूरा का पूरा स्क्रैच से लिख रहा हूं तो चांसेस आर दैट आई वुड बी मेकिंग लॉट्स ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ओके, एंड बिलीव मी, इन नबार्ड अगर आपका मार्क्स डिडक्ट हो रहा है तो वो मेजोरिटी का मेजर मेनी टाइम्स वो पॉसिबल क्या है कि आपने ज्यादा ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स किया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक्स किया हुआ है। सो ग्रामर, स्पेलिंग एंड टाइपिंग मिस्टेक्स आर वेरी क्रूशियल, आर वेरी कॉमन इन नाबार्ड एग्जाम। और इसी कारण से देखोगे लोग जो है 54-55 मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, और कुछ लोग जो है वो 60 to 65 स्कोर कर पाते हैं। जो लोग ये स्कोर करते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं, और ये स्कोर जो करते हैं वो आपको जो है अल्टीमेटली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मी, although I had scored 58, 59. Okay, but if you score 60 to 65, then the chances are that even if the interviewer give you लेस मार्क्स में 5 मार्क्स लेस आपका रहता है, यार आपके ये जो स्कोर है ये आपका मैनेज कर देता है, उस स्कोर को बराबर कर देता है। तो इसीलिए ये चीज ध्यान रखना आपको कि इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करने हैं, इंग्लिश में आपको जो है स्पेलिंग टाइपिंग एरर नहीं करने हैं। एट द सेम टाइम यू राइट व्हाट हैज बीन आस्क्ड। ओके, एट द सेम टाइम आर्टिकुलेशंस ये आपका बेहतर है, टॉपिक रिलेवेंट है, कंटेंट रिलेवेंट है, व्हाटएवर हैज बीन आस्क्ड उससे रिलेटेड आपने कंटेंट कीवर्ड वगैरह इंक्लूड किया है, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट वेरी गुड मार्क्स इन इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में 60 लाना पॉसिबल है नबार्ड में, अगर आपने आर्टिकुलेशन पर फोकस कर दिया, अगर आपने कम से कम मिस्टेक्स किए ग्रामर, स्पेलिंग एंड टाइपिंग एरर के, एट द सेम टाइम आपने जो है कीवर्ड जो है वो अच्छा खासा इंक्लूड किया है, जो पूछा गया उससे रिलेवेंट कंटेंट लिखा है आपने, उसमें डाटा फैक्ट्स को कोट किया है, उसमें स्कीम्स वगैरह को मेंशन किया है, तो ऑटोमेटिक सी बात है आपको जो है अच्छा मार्क्स मिल जाता है। Appreciate writing last year was based on short videos becoming new social media marketing tool। इसी पर जो है बिजनेस टुडे का आर्टिकल था, एक एडिटोरियल था, और उसी पर उन्होंने जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है। इन 2022 द प्रीसी वाज ऑन ईवी। ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आपको जो है प्रीसी था। जनरली एक प्रीसी वगैरह जो है ये आपको एडिटोरियल वगैरह से पिक कर रहे, जैसे आरबीआई में जो है उन्होंने जो है पिक किया था इज एआई जेंडर ब्लाइंड लास्ट ईयर, वो बिजनेस लाइन जो है द हिंदू बिजनेस लाइन, उसका उन्होंने एडिटोरियल पिक किया था। सो दैट्स हाउ दे पिक द एडिटोरियल, एंड दैट्स हाउ बेसिकली आई आल्सो पिक द एडिटोरियल फॉर माय मॉक टेस्ट। ओके, तो ये टॉपिक आपको फॉर्ब्स की का आर्टिकल थी, आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रियली बेटर फॉर द इन्वायरमेंट, तो इसी पर उन्होंने जो पूरा आर्टिकल था और इसी को उन्होंने उठाकर जो आपको दिया हुआ था for the pre writing. Okay, and you had to write in 130 words, but in 2023 they decreased it to 120 words. In 2022 there were no, sorry, there were no word limits, there were no word limits given in 2022. Sorry, in 2021 there were some word limits given, 150 word limit was given in 2022. Write a formality to customer care of a furniture store मैनेजर, सेक्रेटरी ऑफ रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे के ये 4 टॉपिक्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया विथ एजुकेशन यूथ आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर लैक्स लेबर, तो ये टॉपिक था। उसके बाद एग्रीकल्चर से देख सकते हो आप 2 टॉपिक जरूर आता है।
दे आस्क यू टू टॉपिक एटलीस्ट टू टॉपिक्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड ऐसे भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये पूरा का पूरा एग्जाम जो है वो एग्रीकल्चर सेंट्रिक होता है। दिस होल एग्जाम इज एग्रीकल्चर सेंट्रिक। यहाँ पर एग्रीकल्चर से ही आपको वो लोग ज्यादातर फोकस रखते हैं, एग्रीकल्चर पर ज्यादातर फोकस रखता है उनका। तो ये क्वेश्चंस आपको 2022 में आए हुए थे। इफ आई टॉक अबाउट 2021, then these were the essay, letter and précis that were asked in the 2021. The contribution of tourism sector, okay, ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा गया था क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 द मेजर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी वाज ऑन द टूरिज्म सेक्टर, क्योंकि एकदम से पूरा लॉकडाउन वगैरह होने के बाद टूरिज्म आपको ठप पड़ गया था। तो किस तरह से लोग जो है वो बेरोजगार हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे, उस पर क्वेश्चन ये पूछा गया था। बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स, ओके, इस तरह के टॉपिक्स आपसे पूछा गया था। सोशल मीडिया आप देख सकते हो, वंस अगेन दे रिपीटेड, तो सोशल मीडिया। स्कूल ड्रॉप आउट्स, अब यहां पर आप एक चीज ध्यान दोगे तो स्कूल ड्रॉप आउट्स इन इंडिया विथ एजुकेशन, वर्क लाइफ बैलेंस, एजुकेशन की बात नहीं की गई, ओके, बट देर इज ए टॉपिक इन ईएसआई। अगर देखोगे तो एजुकेशन करके एक टॉपिक है ईएसआई में, नॉट अंडर सोशल इशू, इवन अंडर द इकोनॉमिक्स उन्होंने एजुकेशन एंड इलिटरेसी की बात की है। आप सिलेबस ओपन करना, आपको दिखेगा एजुकेशन एंड लिटरेसी की बात की है। एंड आई बिलीव दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई दे हैव बीन आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू एजुकेशनल प्रोग्राम्स लाइक एनईपी, न्यू इंडिया, न्यू एजुकेशन प्रोग्राम, ओके। फिर इलिटरेसी के बारे में उन्होंने कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप जरूर ध्यान देंगे आप लोग, ओके। सो दैट वाज द English descriptive. If I talk about the paper 2, 2 marker and 1 marker, last year आप देखोगे कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स, पैक्स की कंप्यूटराइजेशन पर आपको 4 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो सबको पता है, पैक्स जो है आपको लिटरली कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स जो है वो 2 साल से न्यूज में और काफी ज्यादा न्यूज में है। तो ये पीआईबी से बेस्ड है, पीआईबी में आपको मल्टीपल टाइम्स इस तरह के आर्टिकल आते हैं और इसको मैंने कंपेडियम में भी कवर किया हुआ है और आपको इस तरह से दिया हुआ है। मनरेगा बेस्ड आपको जो पैराग्राफ था एंड उस पर 3 क्वेश्चन दिए हुए थे। वन क्वेश्चन विच वाज अ वेरी सरप्राइजिंग वाज ग्राम रोजगार दिवस, okay, I had not covered, but the ग्राम रोजगार दिवस is conducted on every month, ये हर महीने आपको कंडक्ट होता है। इस पर मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। गाइस, नॉट ऑल द क्वेश्चंस वेर डायरेक्ट इन नेचर, द क्वेश्चंस वेर बिट टीडियस इन नेचर। ये आपको मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह भी यहाँ पर पूछे गए थे, ओके। तो आपको स्कीम्स को थोड़ा सा घुसकर अंदर जाकर पढ़ना पड़ेगा, गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट्स वगैरह से वो लोग क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि ग्राम रोजगार दिवस किसी भी आपको पीआईबी आर्टिकल वगैरह में जल्दी नहीं मिलता है। But those who had read the scheme documents, scheme guidelines PDF, they know that Gram Rozgar Divas has been discussed under section 4. आपको सेक्शन 4 में जो ग्राम रोजगार दिवस को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, ओके। देन कम्स द पीआईबी बेस्ड क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस वेर आस्क्ड। कस्तूरी कॉटन, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के द्वारा जो आपको लॉन्च होता है, पीआईबी में ये बार बार आ रहा था। तो कस्तूरी कॉटन इज द ब्रांड ऑफ इंडिया, कॉटन ब्रांड ऑफ इंडिया। भैया मत्स्य संपदा, लास्ट ईयर एक सब स्कीम लॉन्च हुआ था, उस पर पूछा गया था। मिलेट्स वाज वेरी मच इन न्यूज लास्ट ईयर, तो मिलेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा गया था। सो 4 क्वेश्चन ये भी पीआईबी, मनरेगा आपको पीआईबी में रहता है, बट ऑल दो पीआईबी से क्वेश्चन नहीं था, द रेफरेंस वर ओनली टेकन फ्रॉम पीआईबी। द क्वेश्चंस वेर, the questions could not be directly answered only by reading PIB. The questions were very much in depth, okay, वो आपको गाइडलाइंस पीडीएफ्स वगैरह में घुस के क्वेश्चन पूछते हैं। द सिकल सेल एनीमिया, ये आपको हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है आपके ईएसआई में, और हेल्थ पर क्वेश्चन हर बार वो 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया पर लास्ट ईयर जो है गवर्नमेंट ने जुलाई में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेज नेशनल सिकल सेल, दिस इज पार्ट ऑफ पीआईबी मैगजीन दैट आई प्रोवाइड इन शेडोल मध्य प्रदेश, और उसी पर जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, 3 क्वेश्चंस वेर आस्क्ड। So these were the questions which were basically from schemes. Apart from that, NABARD also asked 6 questions, 6 or 7 questions from static portion in 2 marker. Okay, they asked in 2021, they asked in 2022, they asked in 2023, and they would ask it again in 2024. So the purpose of analyzing these papers is just that you know what they would be asking. So apart from schemes, and you can see the 3 major schemes, basically 3 to 4 has been from the agriculture related ministry. 3 passage at least has been related to agriculture ministry, but one particular passage has been related to
The ESI section, ESI related ministry, ESI, health and education, social justice. These three ministries are very important. Health, education, and social justice. Later, I would tell you the ministry list also, very those important ministry list. But note it down. Health, education, and social justice are very very important ministries. ओके, द एग्रीकल्चर स्टैटिक्स यहाँ पर था 2022 में उन्होंने जो है 2 क्वेश्चन पूछा था और दे वर द हेन फार्मिंग एंड पिग एंड स्वाइन फार्मिंग पर इन्होंने नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट होता है, नाबार्ड मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट होता है। ओके, नाबार्ड के मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट होते हैं, उसी पर बेस्ड उन्होंने जो है क्वेश्चन पूछा था। बट इन 2022 दे आस्क अबाउट सॉइल पीएच एंड सॉइल सैलिनिटी पर जो क्वेश्चन पूछा था और टीलेज पर जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। I guess there were 4 questions on soil pH, so there were 6 or 7 questions on these agriculture static based questions. Okay. वन मार्कर में 6 क्वेश्चन जो है वो मेरे द्वारा कवर किया था। स्वामित्व स्कीम, वंस अगेन स्कीम्स है, पीएम विश्वकर्मा, डॉक्टर अंबेडकर स्कीम ऑफ इंटरेस्ट एजुकेशन लोन, आप देख सकते हैं एजुकेशन पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। भंगारी ब्रीड एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड टाइप पैराग्राफ बेस्ड पैराग्राफ, ऑल दो यहाँ पर भी आपको पैराग्राफ, वन मार्कर में भी एक पैराग्राफ पूछ लिया गया था। और केबीके कमिटी के बारे में पूछा गया था, मल्टीपल स्पेसिस। तो वन मार्कर में जो होता है 4 क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्कीम्स, रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस स्टैटिक होते हैं। ओके, रिमेनिंग 6 क्वेश्चन स्टैटिक से होते हैं, ये चीज ध्यान रखना है आपको। टेक्निकल क्वेश्चन जो होते हैं वो आपसे वन मार्कर में पूछे आते हैं एग्रीकल्चर स्टैटिक के। फेज 2 अगर 2022 का देखोगे तो स्कीम्स में ई नाम पर जो है आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नमस्ते स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसके अंतर्गत का है। आप देख सकते हो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, मैंने बोला एग्रीकल्चर रिलेटेड मिनिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा। पीएमएजीवाई, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वंस अगेन एआरडी मिनिस्ट्री है। रूरल डेवलपमेंट, मनरेगा से एक क्वेश्चन, मनरेगा हर साल पूछते हैं वो लोग, लिटरली हर साल रहता है, एग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो दीज वर द पैराग्राफ्स बेसिकली जो आपसे स्कीम्स पर पूछे गए थे क्वेश्चन। एक और पूछा गया था आइडिया, मतलब बेसिकली क्वेश्चन था वन लाइनर, मतलब क्वेश्चन था शॉर्ट फॉर्म ऑप्शन ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन ऑफ गवर्नमेंट, तो आइडिया है ये क्वेश्चन आपको 2 मार्कर में पूछा गया था। और मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए थे विच वाज नॉट डायरेक्टली ऑन पैसेज बट स्टैंड अलोन क्वेश्चंस वर थे। मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन ऑन एपीएमसी एंड बीपीकेपी था, नेचुरल फार्मिंग स्कीम जो है उस पर पूछा गया था। एपीएमसी पर भी एक क्वेश्चन था और एक बीपीकेपी पर था आपको, तो इस तरह से आप देख सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, वन क्वेश्चन था और इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन 2 मार्कर। बट यू कैन सी हियर द 6 क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर स्टैटिक। एग्रीकल्चर स्टैटिक से 6 क्वेश्चन जो मैंने बोला 2 मार्कर में, विच वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर स्टैटिक। वंस अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 या 4 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको स्कीम से होगा और रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो एग्रीकल्चर स्टैटिक से होंगे। 2022 में 1 मार्कर क्वेश्चन वर क्वाइट डिफिकल्ट, it was very difficult in although the 2 markers were easy but the 1 markers were difficult. Okay, so that was the analysis. I do not have access to 2021 questions, although that's not necessary, that's not objective questions are not very necessary, क्योंकि 2021 का ऑब्जेक्टिव काफी इजी था, लिटरली बहुत ज्यादा इजी था और उस तरह के क्वेश्चन जनरली अब वो लोग नहीं पूछ रहे हैं। आपको ट्रेंड्स को समझने के लिए 2022 और 23 सफिशियंट है, तो मुझे लगता है कि यहीं से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी किस तरह के क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। Okay, so what to read now? The question, another segment of this particular, I have discussed the cutoff, I have analyzed the paper of last 3 years. Now the another segment is what to read. What to read, you know that schemes are very important, schemes are very important, PIB is very important, all this has a difference of PIB, तो PIB आपको करना पड़ेगा। PIB आप जरूर जो है स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, ये 4 एडिशन तो आप जरूर कर लो। अप्रैल एंड मई में आई डिड नॉट लॉन्च एनी पीआईबी मैगजीन इन अप्रैल एंड मई because at that time elections were going on and due to general elections not many news were coming, so we did not launch any magazine for April and May. तो ये 4 मैगजीन आप कर सकते हो if you have time, if time permits then you can go beyond, but I guess these 4 are very important. Apart from that, you will have to cover all the newly launched, all the
मेजर स्कीम, फ्लैगशिप। अब देखो यहाँ पर क्या फोकस करना होता है, फ्लैगशिप पर फोकस करना होता है। Schemes which are in very many news and newly launched scheme plus newly launched scheme, न्यूली लॉन्च्ड स्कीम। फ्लैगशिप स्कीम्स कौन से हुए? फ्लैगशिप स्कीम्स आर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। दीज आर द फ्लैगशिप स्कीम। ओके, दी आर द मेजर एंड फ्लैगशिप स्कीम्स। इसके बारे में पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चंस कभी भी रिपीट कर देते हैं। सो दीज आर द फ्लैगशिप स्कीम्स। न्यूज में हमेशा ये बने रहते हैं, बट उसके अलावा भी काफी सारे न्यूज, जो छोटे छोटे स्कीम्स आपको न्यूज में रहते हैं, खास करके डिजिटल एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज स्कीम्स हो गया या और भी न्यूज। तो न्यूज वाले स्कीम्स आपको कहां पर मिलेंगे? इट वुड यू वुड फाइंड इट इन पीआईबी। तो पीआईबी में जो आपको ये न्यूज वाले मिलेंगे। एट द सेम टाइम न्यूली लॉन्च, दिस वुड ऑल्सो यू कैन फाइंड इट इन पीआईबी मैगजीन। बट जितने भी न्यूली लॉन्च स्कीम है उसका आपको क्या करना है, या न्यूली प्लस एक्सटेंडेड। इफ एनी स्कीम विच हैज बीन एक्सटेंडेड रिसेंटली, एक्सटेंडेड में कौन सा आएगा? रिसेंटली पीएम आशा स्कीम वाज एक्सटेंडेड, AASH, PM ASHA scheme was many schemes were extended. New government I formed, lots of schemes were extended. But मैं एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ, PM ASHA। तो ये स्कीम आपको आ सकता है 2 मार्कर में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गाइडलाइंस PDF देखना पड़ेगा। Although I tried to go through the guidelines PDF by myself while making the PIB magazine, last month agriculture infrastructure scheme was expanded, मॉडिफाई किया गया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और मुझे लगता है कि इस बार 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पे होंगे। नोट इट डाउन समवेयर। I feel that this time agriculture infrastructure fund would be either asked in descriptive or it would be asked in objective worth 2 marker question, 3 to 4 2 marker question would be asked on agriculture infrastructure। लास्ट मंथ मतलब अगस्त के पीआईबी में मैंने इसको काफी डिटेल में कवर किया हुआ है। ओके, तो ये सब जैसे स्कीम से मनरेगा, प्रधानमंत्री, अभी रिसेंटली ग्राम सड़क योजना का भी आपको 4th वर्जन जो है लॉन्च किया गया है। पीएमजीएसवाई 4.0 आपको लॉन्च किया गया, तो ये भी ध्यान रखना। अभी रिसेंटली ग्राम आवास योजना जो है, ओके, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये भी एक्सटेंड, आवास अर्बन एज वेल एज ग्रामीण दोनों एक्सटेंड किया गया है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। लखपति दीदी, वंस अगेन, apart from agriculture infrastructure fund, Lakpati Didi is one particular scheme I'm very much hopeful about in the descriptive as well as objective section। ओके, तो ये आपको हो सकता है। दीनदयाल ग्राम कौशल पढ़ सकते हो। NSAP वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्कर क्वेश्चंस में कई बार इसको पूछा जाता है। सिंचाई मत्स्य संपदा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मत्स्य संपदा को छोड़कर मत जाना, इसको काफी अच्छे से पढ़ना। फिशरीज का एक ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, वही है। ऑल्दो रिसेंटली फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वाज एक्सटेंडेड, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वाज एक्सटेंडेड, सो विच इज वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। FIDF वेरी इंपॉर्टेंट। एक फंड भी लॉन्च किया गया एग्री श्योर करके, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब स्कीम्स क्या हुआ? न्यूली लॉन्च, एक्सटेंडेड, फ्लैगशिप, न्यूज, यही बस कैटेगरी होता है। और ये चीज को आप अगर समझ लोगे तो आपको ढेर सारा पूरा 100 स्कीम कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 40-50 स्कीम आएंगे और उसी में आपका काम बन जाएगा, आप आसानी से स्कोर कर जाओगे। उसी को आप अच्छे से पढ़ के जा पाओगे, उसको अच्छे से करके जा पाओगे। गोवर्धन, पीएम आशा, पीएम कुसुम वाज वंस अगेन एक्सटेंडेड। पीएम कुसुम काफी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेचुरल फार्मिंग, ये जो है काफी फोकस कर रही है गवर्नमेंट। नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग बार बार न्यूज में है। वंस अगेन आई फील नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ डिस्क्रिप्टिव वर्दी टॉपिक दिस टाइम। इट इज अ डिस्क्रिप्टिव वर्दी टॉपिक, सो दे कुड बी आस्क्ड दिस। ई नाम हमेशा न्यूज में रहता है। डिजिटल एग्रीकल्चर वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आई फील दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव वर्दी, क्योंकि बजट में भी आपको पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर के लिए बात की गई। PDI जो है वो आपको एग्रीकल्चर के लिए बात की गई, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। ये सारे मिनिस्ट्रीज हैं जो आपको ARD रिलेटेड मिनिस्ट्री है, जिससे आपका जो है क्वेश्चंस बनता ही बनता है। आपको 8 to 10 क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो इसमें वही फोकस करना है, फ्लैगशिप, न्यूज, न्यूज वाला पीआईबी से कवर हो जाएगा, और न्यूली लॉन्च्ड एंड एक्सटेंडेड दोनों लिख लेना। न्यूली लॉन्च्ड एज वेल एज एक्सटेंडेड, द ओल्ड स्कीम विच वाज एक्सटेंडेड रिसेंटली।
अगर हम लोग ईएसआई रिलेटेड बात करें तो ईएसआई में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला कि आपको ईएसआई में जो है सोशल इशू के अंतर्गत भी एजुकेशन दिया हुआ है, और इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपको जो है एजुकेशन लिटरेसी के बारे में बात की गई है। उल्लास इज वन सच प्रोग्राम जो कि इलिटरेसी को, जो आपको प्रौढ़ शिक्षा होती है, ओके, उसको टारगेट करके लॉन्च किया गया था। निपुण, पीएम श्री, ये सब जो आपको समग्र शिक्षा वगैरह के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सोशल जस्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आपको नमस्ते, स्माइल, ये सब स्कीम जो आपको काफी इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल पर काफी फोकस कर रहा है। ट्राइबल के लिए आपको 2-3 स्कीम लॉन्च की, जैसे जनमन, एक रिसेंटली अभी पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। मैं उसको इस नए वाले एडिशन वाले जो सितंबर वाले जो है मैगजीन में उसका करूंगा, जनमन है। इससे पहले आपको जो है 1-2 स्कीम और था, वो सब स्कीम जो आप जरूर देख लेना। ट्रैवल अफेयर्स आई बिलीव वेरी इंपॉर्टेंट लिटरली, और ये रूरल डेवलपमेंट के पार्ट में आता है ट्रैवल आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट सिलेबस पर्सपेक्टिव से। वुमेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ से। जल शक्ति के स्कीम्स आपको जो है वो आपके एग्रीकल्चर में आते हैं, लेकिन उसको मैंने ईएसआई में डाला हुआ है। अर्बन डेवलपमेंट से देख सकते हो, क्योंकि मैंने बोला ना कि ईएसआई का पार्ट है, और आपको ईएसआई से रिलेटेड वन स्कीम तो पूछा जाता है, वन पैराग्राफ पूछा जाता है। तो अर्बन डेवलपमेंट में पीएमएवाई जो है वो स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अभी यू वर्जन इसका एक्सटेंड किया गया। स्मार्ट सिटी, ऑल्दो अपार्ट at the place of PMAY, I feel that smart cities mission is one particular scheme which is very important that could be asked. ये recently extend हुआ है। तो ये सारे मिनिस्ट्रीज जो है वो आपको ईएसआई रिलेटेड है, जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्कीम्स इन न्यूज की बात करें तो ये स्कीम्स आपको न्यूज है, आप डे वाइज टारगेट बना सकते हो कि डे 1 पर मुझे ये कंप्लीट करना है, डे 2 को ये कंप्लीट करना है, डे 3 को, इससे 7 डेज में आपको जो है इतने सारे स्कीम्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो गाइस डे वाइज टारगेट रखा करो कि आज का मेरा डे का टारगेट जो है वो ये होने वाला है। अगर आप रेंडमली सब कुछ करते रहोगे, यू वुड नेवर फील सेटिस्फाइड, यू विल नेवर फील दैट माई सिलेबस हैज कंप्लीटेड। इसीलिए ऑलवेज हैव अ डे वाइज टारगेट फॉर योर सेल्फ कि व्हाट बेसिकली आई एम गोइंग टू डू टुडे, या टुमारो का मेरा क्या टारगेट होगा। डे वाइज टारगेट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ईएसआई चैप्टर की बात करें कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट ईएसआई चैप्टर है, तो वो ये है। अगर इंपॉर्टेंट बात करें एआरडी स्टैटिक में, तो बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर में आपको ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कन्वर्सेशनल टीलेज, ये आपको जो है इंपॉर्टेंट है। आपको इस पर डिस्क्रिप्टिव्स वगैरह करने पड़ेंगे, इस पर से आपको बन सकते हैं। देन कम्स द प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर। मुझे लगता है कि इस बार एक डिस्क्रिप्टिव यहां से बन सकता है, एंड विच इज द MIDH स्कीम, क्लीन प्लांट स्कीम, रिसेंटली लॉन्च हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली न्यूली लॉन्च स्कीम है क्लीन प्लांट स्कीम। तो यहां से आपको डिजीज एंड प्रोग्राम्स पर, डिजीज पर खास करके कई बार आपको क्वेश्चन जो है 1 मार्कर में पूछ देते हैं। प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में आपको और भी जो है टेक्निकल इनिशिएटिव्स वगैरह जैसे हॉर्टीनेट वगैरह लिए गए हैं, तो वो सब भी आपको पता होना चाहिए। ये आपके नोट्स वगैरह में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हॉर्टिकल्चर चैप्टर जो है अपने कंपेडियम से, आप ARD कंपेडियम से पढ़ सकते हो। सॉइल साइंस इंपॉर्टेंट है, यहां पर से आपको कई बार क्वेश्चंस वगैरह, लास्ट ईयर आपने देखा कि सॉइल पीएच और सॉइल सैलिनिटी पर जो है उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इरिगेशन, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, जो मॉडर्न इरिगेशन है, मॉडर्न इरिगेशन जो भी है उस पर आप जरूर क्वेश्चन तैयार करना। डिस्क्रिप्टिव आपको मुझे लगता है रिपीट कर सकता है, तो डिस्क्रिप्टिव मॉडर्न इरिगेशन जो है पढ़ सकते हो। प्रोग्राम्स बाय गवर्नमेंट भी आप जरूर कर लेना, माइक्रो इरिगेशन खास करके। एनिमल हस्बेंड्री तो महा इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट्री, अंडर फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्री फॉरेस्ट्री एंड अर्बन फॉरेस्ट्री, ये 3 तरह के फॉरेस्ट्री आप जो है अच्छे से कवर कर लो, फोल्डर रेडी कर लो, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री, एग्रो सिल्वी पास्चरल, सिल्वी पास्टोरल, ये सब आपको टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री में आता है। तो वो तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि वो 1 मार्कर में आपको पूछे आते हैं। 1 मार्कर में आपको रिपीटेडली पूछे आते हैं। 2022 में पूछा गया था, 21 में पूछा गया था, 23 में नहीं पूछा गया था, 24 में पूछा जा सकता है। तो 1 मार्कर आपको रहते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री में। फिशरीज का क्लासिफिकेशन पर आपको 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है, वो जरूर देख लेना। प्रोग्राम्स रिलेटेड टू फिशरीज में आपको PMSSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एंड FIDF, फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, न्यूज में था, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पर लास्ट ईयर उन्होंने क्वेश्चन पूछा, 12 मेथड्स उन्होंने पूछे हुए हैं, ये फिर से आपको याद करके जाना है, क्या पता रिपीट कर दे। रूरल डेवलपमेंट पर आपको SHG एंड रूरल फाइनेंसिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। रूरल फाइनेंसिंग वेरी इंपॉर्टेंट। SHG में ही आपको नमो दीदी वगैरह या ड्रोन दीदी वगैरह आपको आता है, लखपति दीदी वगैरह जो भी है वो सारा का सारा SHG के अंतर्गत आता है। SHG पर सरकार काफी फोकस कर रही है,
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव वर्दी टॉपिक है। ईएसआई में इंक्लूसिव एंड ग्रीन ग्रोथ वेरी इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी आ जाएगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, poverty and inequality, globalization and its impact, education and literacy, unemployment and underemployment, inflation and its impact, food security, PDS, MSP, WTO and agriculture agreements, agriculture marketing, migration and demographic dividend, and digital agriculture. These are the important topics of ESI. तो जो कि आपको कवर करना है, जिस पर आपको फोल्डर रेडी करना है। These are the theme basically. These are the major themes on which the questions could be asked in ESI. So that's all from my side in this particular video. I hope I have been helpful. Okay, and this particular video has been helpful for you. So take care. Goodbye. See you in the next video.